ladies sit, three ladies and three gentlemen can be seated at a round table so that any two and only two of the ladies sit together. The number of ways is. So this question can be thought as, when we talk about three ladies, so they are on a round table, a round shape. Suppose then it says two and only two ladies. So this is one lady, this is the second lady. Now we know after the two ladies are sitting, no one can sit there. So this place will be for the other gent, and this will also be for the gent. Now we can say to occupy these two places, then we have the rest two places. So here the logic is simple. First we calculate these two. So these two places can be filled by, out of three ladies we have to fill two. So it can be filled by 3p2 ways. As we have three ladies and we have to fill two seats with the help of three ladies, and this can be done by 3p2 ways. Now when we see we cannot fill this place and this place by another lady, so these two should be filled by again the rest genders, and we know number of genders is 3, so this can similarly be filled by 3p2 ways, because out of 3 we have to fill 2. Now we are with these two, rest of 2. We know these remaining 2 can be filled out by 2 ways. As we know, it can be done rest of the 2 ladies and gent, that is we can put here ladies or gent in the 2 seats, and this can again be done in 2 ways. So total number of ways will be 3p2 into 3p2 into 2 ways, which is equal to 3p2 is 3 factorial, this is 3 factorial, and this is 2. As we know, 3p2 will be equal to 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial, which is 3 factorial divided by 3 minus 2 is 1 factorial, and 1 factorial is 1. Therefore 3 factorial is 3 into 2, that is 6. Again 3 factorial is 3 into 2, that is 6, and 2 factorial is 2 into 1, that is 2. This is 36 into 2, that is 72. Therefore this is the required answer. The number of ways the word dogmatic is. It is simply the number of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this word can be further written down in these ways. There are 8 words, so it can be written as 8 factorial ways. This will be the correct option. Next question. The number of ways in which the number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs is. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखने हैं 10 डिफरेंट थिंग्स की, जिसमें हमें देखने हैं कि 4 एट अ टाइम, बट वहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स. दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट. ये डायरेक्टली हमने जनरलाइज किया था कल. पहले हम कहेंगे, अगर हम देखेंगे इसमें कितनी अरेंजमेंट्स बनाती टेकिंग 4 एट अ टाइम, तो वो इस तरह आता है 10p4. बट यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि एक ऑलवेज आ रहा है इसमें, वन इज ऑलवेज ऑकरिंग, मतलब इट कम्स ऑलवेज. सो हमने लास्ट टाइम कहा था इस तरह,
number of permutations of our objectives out of n distinct objectives when a particular thing is always included in an arrangement is r n minus 1 pr। मतलब इस तरह अगर हमारे पास n ऑब्जेक्टिव्स है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्टिव्स I have taken out all objectives, but one is always included। अगर एक हमेशा होता है इसमें इंक्लूड यानी कि इन और में से, तो हमें पता है फिर ये होता है फिर इस तरह एक तो आ गया है, सो आउट ऑफ दीज और में से एक मुझे सिलेक्ट करना है जिनको मुझे पकड़ना है, तो मैंने कहा था आर फिर इंटू, फिर हम कहते हैं जो मैंने ऑलरेडी एक लिया था उसको छोड़ के अब यहाँ पे रेस्ट बचे n-1। फिर कितने लेने हैं, क्योंकि आर लेने थे तो आर में से मैंने एक लिया है तो इस तरह आ जाएगा r-1। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। नाउ टेकिंग लाइक दैट दिस क्वेश्चन, ये कह रहा है 10 आउट ऑफ 4 में से उठा लो, बट 1 इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि वह एक आप हमेशा एक को आप ले रहे हो, तो उसको मैं कहूँगा फिर मेरा जो यहाँ पे आर है वो है इक्वल टू 1, तो आउट ऑफ 4 में से मुझे एक हर वक्त लेना है, तो इसका सोल्यूशन इस तरह मुझे बनेगा, वो आ जाएगा 4 इंटू, अब मेरा पी जो था वो जो एन था वो 10 था, लेकिन आउट ऑफ 10 मुझे 9 ही लेने हैं, 9p3 लेने हैं फिर, क्योंकि n-1 तो 9 हो गया, इसी तरह r-1 इज़ 3, सो ये आ जाएगा 4 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9-3 फैक्टोरियल which is equal to 4 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इसको हम यहाँ से कह सकते हैं इस तरह, ये आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आ जाएगा फिर से 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अच्छा 6 तो नहीं आ जाएगा क्योंकि 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल डिलीट हुआ है, ये बन जाएगा 2016, विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स इज। ये भी हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया। हमने कहा था अगर आपके पास n ऑब्जेक्टिव्स है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्टिव्स में से आपको और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, तो हम जानते हैं वो आ जाएगा NPR। फिर हमने कहा था सपोज़ एक को मुझे कभी भी नहीं लेना है, 1 इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। इन दैट केस आउट ऑफ n में से मुझे एक लेना ही नहीं है, तो मेरे पास जो रेस्ट बचते हैं वो है n-1। सो इन n-1 में से मुझे r पिकअप करने हैं, सो फाइनली मुझे इस तरह आ जाएगा n-1 PR। सो इन आवर केस इट वाज हेयर n was 10 and r is 4, therefore our solution will be this is 10-1 P4, क्योंकि एक को हमेशा एक्सक्लूड करना है, सो ये बन जाएगा 9p4 एंड ऑन सॉल्विंग दिस 9p4 दिस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9-4 फैक्टोरियल, this is 9 factorial divided by 6 factorial, and this is 9 into 8 into 7, 9 into 8 into 7 is simply 3024, which is the solution for this question. Mr. X and Mr. Y enters a railway station. Mr. X and Mr. Y enters into a railway compartment having 6 vacant seats. The number of ways in which they can occupy the seats is, since हम जानते हैं
नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है 6, ठीक है। सो वी हैव टू फिल 2 seats by 2 persons. So this can be done in 6p 2 ways simply, and this is equal to 6 factorial divided by 6 minus 2, that is 4 factorial. So this is 6 factorial divided by 4 factorial, and this is 6 factorial, 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial. This cancel, this is 30. Or you can directly say by another logic, first person can occupy out of 6 seats 6 ways. So one person can use 6 seats and the second person can use 5 seats because one has already been used. So then it can be done in 6 into 5, that is 30. Therefore 30 is the correct answer for this question. The number of numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is. Since we know the number starts from 100, so there is no confusion regarding this. So we have to, the numbers lying between 100 and 1000 will be 3-digit number 1, 2, 3, and we know every digit from 1 to 7 is greater than 1. So we can say the 3-digit number can be formed by 7p 3 ways simply. Or you can say this place can be filled by 7 ways, because either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 can be filled at this place. Now after this 1 has been placed, we can fill this place by 6 ways, and then the 2 has been used out of these 7 numbers, then we can fill this place by 5 ways. The answer is same in both, so there is no confusion regarding this. 6 5 is 30, 30 into 7 is 210. Therefore what is the correct option? 210, and 7p3 is also 210. Now next question. The number of numbers lying between 10 and 100,000 can be formed with the digits 2, 3, 4, 0, 8, 9 is. Since we know the number formed from 10 in between 10 to 1000, so we will take with the help of two steps. First we will find how many numbers will be formed between 10 and 100. Between 10 and 100 the following numbers are formed, 2-digit numbers. Since we know this place, since we know available digits are 2, 3, 4, 0 and 8, 9, we know except 0 we have these rest 5 digits which can be filled at this place. So first place can be filled by 5 ways. Now after utilizing one digit there, now this place can be filled by all the 6 digits, but we have already used one digit here, so we can also say this can be filled by 5 ways. In short, this is, so 5 into 5, that is 25. Or you can say first place can be filled by number of digits where 5, so we can also say 5p1. And the second place, as we cannot use 0 at the first place, so I have written down 5p1. Now at the ones place all the digits can be used, but we have already used, I can again say 5p1, which is equal to 5 factorial divided by 4 factorial into 5 factorial divided by 4 factorial. This is the same logic, so there is no confusion regarding this. This is 25. Now after that we can say how many digits will be formed between 100 and 1000. Now between 100 to 1000, so we know this can be done
by filling 3 digits. Here we can directly say the first digit cannot be filled by 0, so we are with 5 digits. So this can be done by 5 ways. Now, so this is 5 ways into this can be done. The rest of the digits which has been already used here, मतलब हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक का इस्तेमाल किया होगा, सो एक्सेप्ट 0 हम यहाँ पे 5 इस्तेमाल कर सकते थे. नाउ एट दिस प्लेस हम ऑलरेडी यहाँ पे एक डिजिट ला चुके हैं, सपोज इनमें से एक ला चुके हैं, तो अब कितने बचे मेरे पास? इनमें से 3 और ये 2, इनमें से ऑलरेडी एक यहाँ पे आ गया, तो ये 4 बचेंगे और 4 + 1 = 5 अगेन. ना हमने यहाँ पे 2 यूटिलाइज किए हैं, तो यहाँ पे 4 बचेंगे अब. सो दिस इज 5 × 5 × 4, दैट इज 5 × 5 = 25 × 4 = 100. सो ये हो गए 2 डिजिट्स के, ये हो गए 3 डिजिट्स के 100. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे 100 + 25, दैट इज 125, विच इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question. In a group of boys, the number of arrangements of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys. The number of boys in the group is. The question is very clear and simple. यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि सपोज total number is n, number of boys. Total number of boys is n. Out of n, फिर क्या कह रहा है? NP4 arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys, NP2. सो ये सिंपली आ जाएगा. क्वेश्चन ये गिवन था, सो हमने लेट कहा है n, टोटल नंबर ऑफ बॉयज n. फिर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 12 टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 2 फैक्टोरियल. नाउ सिंपली हमें ये पता है ये किसके बराबर है. दिस इम्प्लाइज दिस इज n × n - 1 × n - 2 × n - 3 × n - 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 4 फैक्टोरियल. इसी तरह यहाँ से आ जाएगा 12 टाइम्स n × n - 1 सिंपली. अब यहाँ पे अगर इतना भी लिखते तो तब भी ठीक था, क्योंकि डिनोमिनेटर में n - 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं अब. बट हम इस स्टेप में लिखेंगे इसको n - 2 फैक्टोरियल. आफ्टर दैट इट विल बी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू फर्दर यहाँ से n - 4 फैक्टोरियल और ये कैंसिल, यहाँ से ये और ये कैंसिल. अब अगर देखेंगे n और n भी कैंसिल, n - 1 और n - 1 भी कैंसिल, तो बचा क्या मुझे? दिस इज n - 2 × n - 3 is equal to 12. Now we have to solve this. Either you can solve this by quadratic equation, क्योंकि ये बन जाएगा n² - 5n + 6. एक तो वो तरीका रहेगा, या तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो n - 2 × n - 3 is equal to 4 × 3, that is 12. क्लियरली हमें पता है n - 2 is greater than n - 3, that is why. यानी कि यहाँ से मुझे पता चलता है कि n - 2 is 4 and n - 3 is 3. इन बोथ केसेस यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाई होता है? n is equal to 6. Therefore n equal to 6 is the correct answer. Since हम now question number next, summation or from 1 to 10 or into r p power r, मतलब इस तरह है. summation or from 1 to 10 r into फिर यहाँ पे r p r. We have to evaluate this.
सो इसका मतलब ये है कि पहले बोल रहा है कि 1 1 P1 फिर प्लस 2, जहाँ पे R है वहाँ पे 1 to 10 लेके जाना है, फिर है 2 2P2 प्लस सो ऑन अप टू 10 तक है तो 10 तक जाना है, 10 नाउ टू इवेलुएट दिस वी यूज सिंपली दिस। सिंस हम जानते हैं n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 p n+1, इतना तो हमें पता है। अच्छा, इसके बाद n+1 फैक्टोरियल को हम इस तरह लेके चले जाएंगे, दिस n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। सो ये सिंपली आ जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। एंड वी नो, या तो आप यहाँ पे ही इसको n फैक्टोरियल को मानो nPn, इस तरह। ये एक ही बात है जैसे मैंने पहले भी लिखा था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा nPn एंड वी नो दिस n+1 फैक्टोरियल इज n+1 p n+1। सो ये सिंपली आ जाएगा, इट इम्प्लाइज n+1 p n+1, that is this n+1 factorial is this equal to n times nPn, क्योंकि n से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आ जाएगा प्लस nPn। अच्छा, मुझे पूछ क्या रहा है असल में मुझे पता होना चाहिए 1 P1 2P2 इस तरह 10 P10, यानी कि मुझे ये पता होना चाहिए। इसको मैं एक साइड से लेके जाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब होगा n इंटू nPn, दिस इज इक्वल टू n+1 p n+1 minus nPn। Using this very logic, we can simply say मतलब इसको यहाँ पे लेके आके मैं लेके आ रहा हूँ, तो नाउ वी विल इवेलुएट दिस। नाउ अब हम देखेंगे 1 इंटू, अच्छा ये यहाँ पे n नहीं है, ये यहाँ पे है n, 1 P1 विच इज सिंपली इक्वल टू 1+1 इज 2P2 माइनस 1P1, यानी कि 1 इंटू 1P1 इज इक्वल टू दिस थिंग। इसी तरह 2 इंटू 2P2 वो आ जाएगा 3P2 माइनस 2P2, यानी कि ये फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं ये सारी 1P1 1 इंटू P1 और 2P2 फिर मैंने लिया, इस तरह मैं लिखूँगा 3 इंटू 3P3 इज इक्वल टू सिंपली यहाँ जाएगा 4P4 माइनस 3P3। इसी तरह सो ऑन डॉट डॉट, फिर मैं लिखूँगा 10 इंटू 10P10 वो आ जाएगा 11P11 माइनस 10P10। अगर मैं इनको सम करके जाऊँगा तो आप नोट कर लो, पहले वाले की लेफ्ट हैंड साइड से मुझे वही आ जाएगा 1P1 2P2 जो मुझे क्वेश्चन में दिया था, यानी कि यह आ जाएगा सिग्मा और फ्रॉम 1 to 10 और इंटू और पी और विच इज़ इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या होगा, हर किसी की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म से डिलीट होती है, यानी कि ये टर्म इसके साथ डिलीट होगी, दिस टर्म विल बी डिलीटेड विथ दिस टर्म विल बी डिलीटेड विथ नेक्स्ट टर्म। तो लास्ट पे जब आपको 9 इंटू 9P9 होगा तो उसकी टर्म इसके साथ डिलीट होगी। यहाँ पे जो बचा आपको वो है 11P11 माइनस 1P1, यानी कि आपको ये बचेगा माइनस 1P1 प्लस 11P11। तो ये किसके बराबर आ गया, हम जानते हैं 1P1 इज़ 1, दैट इज़ -1 प्लस 11P11। So this is 11P11
minus 1, which is the right answer for this question. The total number of 9 digits numbers of different digits is. सिंस इस क्वेश्चन में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 10. सो हमें पूछ रहा है कि 9 डिजिट्स में से 9 डिजिट नंबर में से आप कितने आप बना सकते हो. मतलब अगर ये पहला डिजिट है तो हमें पता है यहाँ पे 10 डिजिट्स है तो इसका मतलब 0 1 2 अप टू 9. ठीक है. सो हम यहाँ पे 0 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हम जितने कर सकते हैं वो है रेस्ट ऑफ 9 डिजिट्स. सो दिस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज. और फिर हमें पता है रेस्ट ऑफ द डिजिट्स वो कितने बच गए. अब 8 में से हम यूटिलाइज कर सकते हैं. इन कोई भी 9 कर सकते थे बट हमने ऑलरेडी एक यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है. सो हमारे पास बचेंगे अब फिर से 9 डिजिट्स, क्योंकि आउट ऑफ दीज 9 डिजिट्स मैंने यहाँ पे एक किया है इस्तेमाल. सो इन एडिशन उसको छोड़ के वहाँ पे 8 डिजिट्स बचते और फिर और एक ही 0 यहाँ पे 9. सो मैं कह सकता हूँ 9 इंटू 9p9, क्योंकि मेरे पास अब 9p 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 चॉइस है मेरे पास और 8 प्लेसेस अब फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे होगी मेरी अब रेस्ट ऑफ 8 प्लेसेस. इनकी इस तरह मैं समझूंगा. मुझे 9 डिजिट्स था 1 2 3 डॉट डॉट 9, यानी कि ये पहली थी, पहला डिजिट, सेकंड, थर्ड, दिस वाज 9th डिजिट. इसको मैंने ऑलरेडी इन 9 से फिल किया तो वो मैंने बताया दिस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज एंड रेस्ट ऑफ दिस. अब ये बचे कितने 8. इनको हम फिल कर सकते हैं 9p 8 वेज से. और 9p 8 वेज क्या होता है, वही होता है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9p 8 आ जाएगा आपका सिंपली 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 8 इज 1 फैक्टोरियल. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन. Next question. The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together. यहाँ पे 6 persons की बात, 6 men बोल रहा है और फिर 3 सिट कर रहे हैं टुगेदर. सो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली समझ चुके होंगे. मेरे पास 6 है, आउट ऑफ 6 आप कह रहे हो कि 3 शुड सिट टुगेदर. इन 3 पर्सनस को अगर मैं समझूंगा एक ही, ठीक है, इन 3 को. सो आउट ऑफ 6 मुझे कितने, इन 3 को डिलीट करके एक तो बचेंगे वो 3. ठीक है. और फिर इनको, इन 3 को मैं एक ही समझ रहा हूँ तो आ जाएगा 3 + 1. सो इट विल बी 3 + 1 दैट इज 4 पर्सनस. अब इनकी अरेंजमेंट कितने वेज से होगी हम जानते हैं. इनकी अरेंजमेंट होगी, सो टोटल अरेंजमेंट, टोटल परमिटेशन फॉर 4 पर्सनस वो सिंपली होगी 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल. और इन 3 की अब क्या होगी जो सिट कर रहे टुगेदर, इन 3 की होगी 3 फैक्टोरियल. सो देयरफॉर अगर मैं कहूँगा अब टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी व्हेन 3 आर सेटिंग टुगेदर. इट शुड बी इक्वल टू, हमें ऑलरेडी आया है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 विद इन इटसेल्फ 3 फैक्टोरियल परमिटेशन बनाते हैं. अच्छा, हमारा क्वेश्चन इस तरह, आंसर इस तरह नहीं है तो इसको हम सोच सकते थे ना आउट ऑफ 4 पर्सनस, इसको हम कह सकते हैं ना 4p4 वेज से. आउट ऑफ 4 पर्सनस 4 सेलेक्ट करने थे और इन 3 में से मुझे करने थे 3p3 फैक्टोरियल. सो ये सिंपली आ जाएगा 4p4 इंटू 3p3. इस तरीके से भी आंसर जा सकता है. और अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल होता है 4p4 ही.